before joining TCS, I was not aware of these programming languages because I have done, till 12th. I was in this. I was studying commerce with maths. BCA. Before BCA till 12th, my stream was commerce. I see. So you don't know any programming language before TCS? Yes, before BCA. How did you join TCS then? Interview कैसे clear हुआ? No, before BCA, because in BCA they Before BCA. till 12th. After BCA, you know programming. After these 2 years, I learned multiple languages like C, C++, PHP, then Java. Then finally I thought, okay, maybe Java is the right language for me. Then I started learning Java, Advanced Java, J2EE, and few frameworks which we used to learn that time, like Hibernate and Stud. But Thank you so much, guys, to be in my channel. It's called Mindfulness with Manish. Today we have one of the important guests. His name is Ajay. He works in Google as one of the software engineers. One of the important points of today's discussion is all around work-life balance, how to live, how to be financially independent, life comparison between India and US, and about his life, about Ajay's life, how he rose from earning such a small salary within one of the tech companies, and now he works for one of the FAANG companies. So all of that conversation will come up. So now I will welcome Ajay. Ajay, thank you so much to be in my channel again. Thank you, Manish. It's called Mindfulness with Manish. Mindfulness, as you know, उसका मतलब होता है कि basically living in the present moment, being conscious and about. And ये हर फील्ड में आता है. ये living in present moment tech में भी आता है, travel में भी हर जगह आता है. That's why I connect with like-minded people. और मतलब जो स्मार्ट लोग हैं आप जैसे वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बताते हैं, इससे मेरे को भी सीखने को मिलता है और ऑडियंस को भी मिलता है. तो मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया, बट कैन यू टेल मी लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ? आप वेयर वर यू बोर्न, योर फैमिली बैकग्राउंड, एंड आपका करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? एंड Sure. First of all, thank you, Manish, for letting me joining this good opportunity. And apart from that, so I brought up in basically born in Rajasthan and brought up in Delhi. So my whole family background still lives in Rajasthan. Nice. So it's a very small city in Rajasthan which is called Sadar Shahar. So it's a part of it's a district in Churu. It's a very small city. So apart from that, I lived there till when I was 6 or 7. Then we moved back to Delhi. So I did my whole school, college, and my whole professional life. I've done everything in Delhi only. Apart from that, my family background, my father and my whole family is still into business. So my name is Ajay Soni. So I'm basically a Sunar. Sunar. Yes. What is Sunar? So Sunar, like who works with goldsmith. Oh, okay. So surname is Sunar. Soni. Surname is Soni. Okay. So we basically are Sunar. We call Your ourselves. father is a Sunar. Yes, my father, my brother, and my whole family background. Everyone is working, In with gold. gold. So they do the entire gold. jewelries. They Fine. actually make all those, jewelries, which called Kundan Polki, diamond sets, gold sets, whole wedding sets. They have like which starts from like 15 lakh or till 50 lakh. So they deals in all those work. Apart from that, so why I started this career, because everyone usually ask Why me, did you do the family? हाँ कि भाई सोने में क्यों नहीं है? सोना आज 70-80 का हो रहा है तो कहाँ तुम जॉब कर रहे हो? Why you're not doing a family business? I was like कि डेस्टिनी थी, मतलब it was not planned, कि मैंने कोई प्लान नहीं करा कि मेरे को बिजनेस करना है या जॉब करना है. I was just doing my studies. I have completed my 12th from Delhi only. Then I've joined and then I started pursuing BCA. So I was not even planning for a job, but it's all about destiny. मेरा प्लान नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगा या जॉब करूंगा. But when I was about to complete my graduation, which is from one of the Sharda University. I was about to complete my graduation. I got an offer from one of the service-based company, which is TCS, Tata Consultancy Service. I got an offer from that company, which was off campus. Even I was not preparing for it. It was, I'll say, it was pure luck. So I got that opportunity. And after completing my graduation, I've joined that organization. So I worked with them for almost 5 years. But the very, funny part is, before joining TCS, I was not aware of these programming languages because I have done, till 12th, I was in this. I was studying commerce with maths.
BCA. Before BCA till 12th, my stream was commerce. I see. So you don't know any programming language before TCS. Yes, before How BCA. did you come to? How did you join TCS then? Interview कैसे clear हुआ? No, before BCA, because in BCA अच्छा, they before BCA. till 12th. After BCA, you know programming. हाँ, after BCA, even the funny part is when I was in my first semester, they started teaching me C language, and I was very confused कि यार ये hash include dot h what all these are about. मतलब कुछ characters ऐसे हैं जो मैंने कभी use ही नहीं करे, and they're using all those characters कि keyboard में देखे तो हैं, but आज पता चल रहा है कि क्यों हैं. तो मेरा बैक आ गया उसमें सब्जेक्ट में. But after completing my first semester, I started looking out for coaching classes. Then I started learning that language. Then after 2 years, I learned multiple languages like C, C++, PHP, then Java. Then finally I thought, okay, maybe Java is the right language for me. Then I started learning Java, advanced Java, J2EE, and first few frameworks which we used to learn that time, like Hibernate and Strut. But after completing all those languages, I got an opportunity from TCS. Okay, I got an offer from TCS after BCA. You can join us. Then I joined TCS for 5 years. So with them, I have explored multiple languages. See, जैसे लोग बोलते हैं कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओ, आपको लर्निंग नहीं मिलती. You will not learn a lot. Obviously, money में difference है कि they'll pay you less because I started from very low salary, which was around 1.8 per year. So if I'll calculate it, it was around 10 to 13,000 per month, which was very less. But I was from BCA background. तो BCA में और BTech में learning बहुत मिली. That completely depends on the person actually. कभी भी कंपनी डिफाइन नहीं करती कि आपको किस प्रोजेक्ट में कैसी लर्निंग मिलती है. प्रोजेक्ट डिफाइन करता है. लोग बोलते हैं कल्चर कैसा है, तो कंपनी का कल्चर अलग होता है, प्रोजेक्ट का कल्चर अलग होता है. तो प्रोजेक्ट में बेसिकली प्रोजेक्ट चैलेंजिंग है, अच्छा है, तो बेकार कंपनी भी आपको अच्छा बना देगी. यस. और मैनेजर पे भी डिपेंड करता है. मैनेजर पे भी. और देखो, पॉलिटिक्स हर जगह होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट. हाउ यू गोना हैंडल इट. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. सो मैंने भी बहुत पॉलिटिक्स देखी हैं. द बेस्ट थिंग इज कि डू योर वर्क. आप काम पे ध्यान दो. ऐसा नहीं है कि आपको ग्रोथ चाहिए, आपको बैंड चाहिए, ईयर अप्रेजल चाहिए. मतलब लीव दैट पार्ट. वर्क ऑन योर सेल्फ. आपको काम करना है, काम सीखना है, बिकॉज इवेंचुअली आफ्टर 2-3 years यू आर प्लानिंग टू स्विच. 2-3 साल बाद सबको यही है कि मेरे को ग्रोथ चाहिए. कंपनी ग्रोथ देती है ईयर टू ईयर, बट दोज आर वेरी very what to say, very marginal difference, like 5%, 6%, 10%, which doesn't make any impact on your salary. And I was started at 1.8. So if I'll calculate even 10% of 1.8, that will not even cross 18,000 for year. If I'll divide it per month, so I'll be getting only 2,000 to 3,000 extra. So that doesn't make any sense. Instead of that, work on yourself, work on your language, work on your skills. So you worked on that. Yes. You worked on your language. So in 5 years, मतलब लोग बोलते हैं कि टीसीएस में सपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है. टीसीएस में काफी अच्छे प्रोजेक्ट. You just need to work on those projects. The right project. Right project, right time, and you have to fight for it. काफी लोग ट्राई करते हैं कि you'll join support project, but you have to fight for it. अब मेरे भी काफी लड़ाइयाँ हुई हैं, HR से भी हुई है, मैनेजर से भी हुई है. ऐसा नहीं होती हर जगह. But I fought for myself कि नहीं, मेरे को ये करना है तो I'll do it. Eventually, either one of has to agree. So sometime I have to agree with them, and sometime they have to agree with me. So it was like that. But after 5 years, I have worked on like Java, advanced Java. Even for 1 year, I started working on AI also. They have their internal projects and they're using AI. So for one year, I was working on AI, which was very trendy, and I was working around 2016, which was very early stage of the AI. But after working on AI for a year, I realized, okay, maybe AI is the not right technology for me. I want to still continue with the Java. So I moved back to Java with full stack, Angular, and other stuff. So I started exploring different languages also. So 5 years in TCS only, I've learned a lot. I've worked on multiple technologies, Node.js, Java, Angular, React.js, AI. These are very, trending, hot technologies still in the market. Right. I think you did a good job because people go to coaching institutes and learn the language by paying themselves. Right? Yes. And you learn for free.
right? As in people are paying you, Jesus is paying you, and you learn all these languages. That is Yes. the best way to learn. Right? So it again depends on your mindset. मेरा starting से था कि I have to work on myself, I have to improve my skills. कंपनी तो काम देती है, now it depends on you, आपको उसको अच्छे से करना है या फिर just जुगाड़ करना है. तो there is a difference between your work. If you have कहीं से to, कॉपी करके करना है. बस. आजकल चैट जीपीटी भी चल रहा है. अब वो तो अब आया है, मतलब पहले हाँ, तो पहले चैट नहीं था. जीपीटी था, पहले स्टैक ओवरफ्लो चलता था, और हाँ. आज भी डेवलपर्स स्टिल आर डिपेंडेंट ऑन स्टैक ओवरफ्लो. तो पहले लोग करते थे स्टैक ओवरफ्लो पे गए, Code कॉपी करना. करा, हाँ, पेस्ट करा, paste कर दिया. बट वो समझते नहीं है कि उसका रीजन क्या है. मैं भी नहीं That's- करता था पहले ना. मैं अभी चैट जीपीटी कॉपी करता हूँ, बट मैं उसको एक आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं जो एनालाइज की एआई का कंटेंट है नहीं है, तो मैं उसे सीधा कॉपी करता हूँ और बता देते हैं सीधा 100% कॉपीड है. फिर मैं उसको ह्यूमन वे में करता हूँ और फिर मैं उसमें करता हूँ, उसमें दिखाता है ह्यूमन वे, और फिर मैं चैट जीपीटी उसमें डालता हूँ, भाई इसमें ग्रामर सही करते हैं, कोई ग्रामर सही करके आता है, वो उसमें डालता हूँ, वो सीधा दिखा देता है चैट जीपीटी. आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं ऐसे बहुत. जो बता देते हैं कॉपीड है नहीं है. बहुत. बट वो ये ना कि आप कॉपी तो कर लेते हो, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए. वो मेन चीज. वो कितनी समझ आ रही है, दैट मैटर्स, दैट ग्रोज योर इंटरनल स्किल्स. तो दैट मैटर्स अ लॉट. अब आपने कॉपी कर लिया बट आपको पता ही नहीं है कि उसका रीजन क्या है, why you have used that particular solution. People बोलते हैं कि डीएसए पढ़ो, बट कहाँ यूज होता है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. Okay. तो जब जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके लिए बोलते हैं डीएसए आने चाहिए. तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं डीएसए कि भैया ये ऐसे ऐसे पढ़ो, ये स्ट्रक्चर है, ये रोड मैप है. बट मेरे को लगता है कोई ये नहीं समझाता. मैं उनसे पूछ लूँ कि आप इसका यूज कहाँ करोगे. कंपनी के अंदर डीएसए को यूज नहीं होता. होता है बट बहुत कम होता बहुत कम होता है. हाँ, मैं पहले आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिफोर. 95% आप यूज ही नहीं करते. नहीं करते हो. ये इंटरव्यू में ऐसा देखो, लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू प्रोसेस, राइट? इंटरव्यू में आपसे पूरा ये लिंक लिस्ट रिवर्सल, ठीक है, उसके बाद ये डायनामिक प्रोग्रामिंग, उसके बाद ये हीप मैप, हीप सॉर्ट, ये सब जितने भी सॉर्टिंग शॉर्टेस्ट पाथ, जो करवाते हैं, बहुत करवाते हैं. कंपनी में एक चीज ये लीड कोड का पूरा करना पड़ता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को. 3-4 महीने की पढ़ाई है. देखो यही डिफरेंस है. अब ये कंपनीज डीएसए क्यों पूछती हैं? बाकी कंपनियों तो बस ट्रेंड फॉलो किया होगा कि पूछना है. जो बिग कंपनीज है, फैंग, मैन, ये क्यों पूछते हैं डीएसए? बिकॉज दे हैव टू क्रिएट योर ओन फ्रेमवर्क. व्हेन इट कम्स फॉर क्रिएटिंग योर ओन फ्रेमवर्क, यू नीड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. You can't go with any collection. N square. That is your time complexity. So you need to look for optimal solution. अब what is algorithm? अब मैंने कोई piece of code लिखा, ठीक है, that is the optimal solution. ऐसा तो मतलब searching, sorting बहुत available है. But अगर मैंने कुछ अपना कोड लिखा है which is optimized, so I can treat that piece of code as an algorithm because that is solving a problem. That's what we call an algorithm. कि भाई this algorithm is solving one particular problem and which is the optimal way. So why these FANG companies are focusing on DSA? Because they have to create the frameworks, and their framework should be the optimal framework. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी यूज कर दिया और बना दिया. बाकी 95% कंपनीज में तो बस ट्रेंड हो गया है कि DSA पूछ लो, बट एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ में आप DSA का यूज बहुत कम करते हो. और यूज तो छोड़ो, अगर लोगों ने सुना भी होगा ना DSA, मैं उनसे पूछ लूंगा कि आप उसका मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ. कुछ नहीं होता. उनको पता ही नहीं है. जस्ट एन एक्सक्यूज टू टेक इंटरव्यू, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आप और किसी तरीके से एक बंदे को जज करते हैं, दिमाग आपका क्या चल रहा है, आप कैसे एक फास्टर सोल्यूशन में अप्रोच कर सकते हो. हाँ, अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि बस डीएसए कॉलेज में पढ़ लेते हैं, बट किसी को यही नहीं पता कि डीएसए के अलावा प्रैक्टिकल यूसेज क्या है उसका. वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है. प्रैक्टिकल यूसेज होते हैं? अब जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल है जो ऑनलाइन अवेलेबल है. मतलब जैसे आपका ब्राउजर है, ब्राउजर में आपका बैक बटन, फ्रंट बटन होता है. तो यू कैन यूज लिंक लिस्ट फॉर दैट, यू कैन यूज एरेज फॉर दैट, बट व्हाट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन व्हिच इज स्टैक एंड क्यूज और डीक्यूज. कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज करना है. अब वेरी फेमस एग्जांपल इज यूट्यूब में आप यू कैन सी द बफरिंग. अब यूट्यूब का जो एक्चुअल एल्गोरिथम है वो पूरी वीडियो एक साथ प्ले नहीं करता, वो वीडियोस को चंक में लाता है और उस चंक को बफर करता है, बट दैट आल्सो यूज वन डेटा स्ट्रक्चर. तो वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बना है कि आपको वो बफर जल्दी हो, लोड जल्दी हो, एंड यू विल यूज अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर फॉर दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच आर अवेलेबल ऑनलाइन, बट लोग उनको पढ़ते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है. अब जैसे आप, सबसे सिंपल सी चीज है, आपने इंस्टाग्राम यूज करा, इंस्टाग्राम में यू कैन सी लॉट्स ऑफ पोस्ट. आप स्क्रॉल करते हो,
अब ये सारा डेटा तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा डेटाबेस से उठ के आ रहा है. There is some algorithm which is working behind the scene, which is fetching the data, and there is a very famous problem. Your circular. I just kept that name. One second. Circular queue. Not circular queue. It's to Postman. find a cyclic problem. It's a cyclic problem basically. So in Instagram, let's say you found a post, you're still going through a post. At some point of time, वो post आपने जो देखा है वापस वो पोस्ट ना आ जाए, तो देयर इज अ एल्गोरिथम बिहाइंड इट कि वो साइक्लिक ढूंढता है कि मैंने वो पोस्ट जो देखा है वापस ना आ जाए. तो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो आपको एक्चुअली में समझाती हैं कि यूसेज ऑफ डीएस. So that's how you implement practical. That is a practical implementation of DS in every different problem. यस, तो वो समझना चाहिए बंदे को. मेरे को लगता है कि आप पढ़ लेते हो, रट लेते हो, बट आपको पता ही नहीं है कि उसका यूसेज का है. दैट्स द प्रॉब्लम. और आप डीएसए एक्चुअली में प्रोफेशनली यूज ही नहीं कर पाते. मेरे को 10 साल हो गए हैं, मैंने पर्सनली, एक डेकेड हो गया मेरे को इस इंडस्ट्री में, मैंने पर्सनली बहुत कम जगह डेटा स्ट्रक्चर का यूज करा है. मैक्सिमम आई कैन यूज मैप और एट सम प्लेस आई हैव यूज्ड स्टैक एंड क्यूज, बट द proper DSA I've never implemented because I'm working on Java. I'm not building a framework. I'm already working on a framework which is optimized. So I don't have to work on DSA. मेरा काम ही नहीं है क्योंकि मेरे को वो framework ही पूरा बना हुआ मिला DSA पे. तो बात करते हैं when you were in TCS, you talked about 5 years, you learned a lot. उसके बाद क्या हुआ? Then I started my own startups. I tried like 2-3 startups and I have learned a lot. I failed for all 3 startups, but there was a different reason for every failure. So I've learned, okay, what was the missing for the first startup, then I implemented on the next one. Then I learned, okay, there is another problem. Then I learned from the second one and I implemented on the third one. Then I thought, okay, maybe it's time for me to move back to some, join some company again. Again, I have to work on myself because I learned from those 3 startups. I still have some gaps which I have to fulfill. And after completing or after failed with 3 startups, I've joined Hitachi. So I worked for 3 startups and I realized, okay, marketing, coding is a one segment of it. आप बना लोगे but बेच नहीं पाओगे. बेचना is a different skills and it's not my You don't have expertise. expertise in that. You are a Maybe technical person. I'm a technical person, so I need someone who can sell for me. I can build it, I can create it, I can build any platform from scratch because I've done almost 7 to 8 platform. I've built it myself from scratch till production. But then I realized, okay, building a software is a one segment. Apart from that, you need a lot of things. You need money, you need manpower, you need people who can sell your product, you need marketing team who can market your product. So there's a lot of things That's going why on. in a company there's a lot of segments. Yes. So engineering is one segment, right? Then engineering में भी QAs and engineers आते हैं, वो सब we are not. Then we have operations. Yes. Right? And then we have sales. We have product management. All these are outside engineering, जो customer handle करते हैं. Yes, तो मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग का पार्ट देखा था मैंने उसमें thesis. So I thought मेरे को चलो I can build software. Yeah. मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा और ऐसे बिकेगा. Then I started working on it. I've built multiple software. I built an e-com तो platform. sales का बंदा हायर करना चाहिए ना स्टार्टअप. It's not that easy. आप अपने प्रोडक्ट पे अपने बच्चे की तरह काम करते हैं. Yeah. But it's not with every people. If you're paying them, they'll treat it as a job. For you, it's a baby for you. Yes. But for them, it's a job for It's a job for them. Yeah, yeah. So ये mindset ये रहेगा. You need people who can join you. Treat as a baby. Baby. And वो जॉब में कभी आएगा ही नहीं. ये लोग बहुत कम ऐसे मिलते हैं. वो जॉब में वो माइंडसेट आ ही नहीं सकता. द प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव अ माइंडसेट ऑफ बिजनेस. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द बैकग्राउंड फ्रॉम द जॉब फैमिलीज. मतलब उनके मॉम डैड भी जॉब ही कर रहे हैं. तो माइंडसेट जो उनका है वो जॉब वाला उनको बिजनेस में कन्वर्ट करने में बहुत डिफरेंस होता है. जॉब वाले को लगता है बिजनेस अच्छा है, बिजनेस बढ़िया है. बिजनेस वाले को लगता है जॉब अच्छा है. दूसरे की थाली हमेशा. Yes. मैं भी जॉब करता हूँ. I always think business is better, but business में अलग प्रॉब्लम्स होती है. अलग problems होती है. कभी आता नहीं पैसा, कभी आता है. उसका दिन रात काम करना पड़ता है. संडे काम करना पड़ता है. और जॉब वालों में छुट्टी ले ली, 10 दिन गायब है, कोई मतलब नहीं, फोन नहीं चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, कोई टेंशन नहीं है. कंटिन्यूअस इनकम आ रही है. तो
हर चीज के अपने साइड इफेक्ट्स हैं. मतलब अगर आप देखते हो बिजनेस में पैसा बहुत सारा है तो भैया बिजनेस में पेशेंस भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए. यू हैव टू स्पेंड 24/7. It's like a baby. इट्स लाइक योर बेबी. मतलब आप बच्चे को जब 6 महीने रखते हो तो आप सो ही नहीं पाते हो, आपको खिलाना पड़ता है टाइम टू टाइम, ध्यान रखना पड़ता है. तो यू हैव टू ट्रीट दिस योर ओन बेबी. तो स्टार्टअप ऐसे ही नहीं चलते. स्टार्टअप में इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट until unless you don't have very huge amount of money. पापा ने बैग दे रखी है, पैसे दे जाओ उड़ाओ. तो या फिर इन्वेस्टर का पैसा मिल जाए तो बात अलग है, बट वो भी एक टाइम के बाद मिलता है. आफ्टर यू हैव सम, वो भी ऐसे ही नहीं देते. मतलब पैसा देखते हैं यूनिक वैल्यू क्या है. अब मेरे पास पैसा रखा है, मैं किसी से लोग हाँ, वो कन्विंस करेगा मेरे को मैंने पैसा अपनी मेहनत से, चल जैसे मुझे बनाया तो है, मैं देने से पहले 100 क्वेश्चन पूछूंगा. कि 10 गुना होगा पैसा में नहीं होगा. तो वो पूछने के बाद फिर वो बताएगा कि हाँ, फिर वो अपना इंटरफेरेंस पूरा रखेगा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन अ कंपनी, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर आइडिया एंड योर टीम एंड योर एफर्ट. मतलब आप सोचते हो अकेला बंदा नहीं कर सकता. यू नीड अ मनी, यू नीड अ टीम. कॉलेज स्टूडेंट करते हैं बिकॉज दे हैव टाइम एंड दे हैव टीम. मैंने कितने स्टार्टअप्स देखे हैं जो कॉलेज टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं एंड दे आर रनिंग वेरी गुड इन द मार्केट. बेस्ट टाइम इज टू स्टार्ट इज ड्यूरिंग कॉलेज टाइम. कॉलेज टाइम बिफोर 30 चालू कर दो. बिफोर 30 तो मतलब आई विल से इट्स लेट. बिफोर जब आप कॉलेज में हो, इफ यू आर डूइंग योर इंजीनियरिंग, तो आई वुड से कि आप उसी टाइम पे ही you have to develop your mindset. But the problem is like आजकल की एजुकेशन में ना पढ़ाई नहीं सिखा. आजकल आई डोंट नो, अब चेंज हो गया होगा, बट मेरे टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप ये सब नहीं सिखाते थे. दे ट्रेन्ड अस टू बी अ जॉब सीकर, कि भाई प्लेसमेंट लेंगे, नौकरी आ रही है, नौकरी आ रही है, कितने का पैकेज लगा तेरा? 3.5 का, 10 का. That comes with your mindset. That's what I'm saying. You have to train yourself from the college time. आप कॉलेज में फ्री हो, you have time, you can take risk. You don't have any dependencies. आपको कहीं काम नहीं करना, आपको पैसा घर पे नहीं देना, या फिर आप you haven't started earning, so आपकी expectation नहीं है business से. But you have to train yourself, you have to maintain yourself कि मेरे को business करना है ताकि आपका mindset develop हो. That's the best time for you if you want to start your own business in future also, because उस time पे आप पे कोई pressure नहीं है. You're doing it for fun. Yeah, my friend actually, an example, I went to US for masters. उसने masters में he was in biotech. He started a company दूध की for vegan people. Vegan जो होता है दूध नहीं पीते, वो उनके लिए अलग दूध बनता है केमिकल से. उसने एक आइडिया आया, उसने फंडिंग रेज करने के लिए 100 इन्वेस्टर से बात करी, सबसे रिजेक्शन आया. 101 इन्वेस्टर ने पैसे लगा दिए. अब वो कंपनी सीरीज ई है, 300 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है. बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसकी एज 30 years है, and he's the only founder. And even I have also met few peoples जिनका मतलब एक product था, they have started when they were in college in 3rd year. That time they got a funding of 1 CR. 1 CR for student is very big number. Is a lot. Is a lot for They can run a students. company here, 5-6 people week. But they were running a company of 20-30 people after getting that investment. But after a year, उनका brand इतना बड़ा हो गया, they got 30 crore as an investment. बिकॉज उन्होंने अपना माइंडसेट कॉलेज लेवल पे ही इतना डेवलप कर लिया कि उनको पता है कि मेरे पास अभी टाइम है, रिस्क मैं ले सकता हूँ. जॉब करने के बाद द प्रॉब्लम इज आपको पैसा दिखता है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, तो यू विल नॉट टेक दैट रिस्क. और साइड बाय साइड आप नहीं कर सकते. इट्स वेरी लोग डिफिकल्ट. सोचते हैं कि जॉब के साथ बिजनेस कर लेंगे. इनिशियल लेवल पे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट और जब बिकॉज फैमिली हो जाती है तब तो वो बहुत मुश्किल है. इट्स क्योंकि अगेन बच्चा है, वाइफ है. देयर इज अ डिफरेंट लेवल. अगर आपने जॉब स्टार्ट कर दी है, लेट्स से यू आर डूइंग अ जॉब फ्रॉम लास्ट 6 months, तो आपको हैबिट हो गई वो पैसे आने की, पैसे लगाने की. आफ्टर 6 months फॉर यू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप जॉब छोड़ के काम करो क्योंकि पैसा नहीं आएगा. You have that lifestyle, and to maintain that lifestyle you have that salary. Now you depend on that salary to maintain your lifestyle. So you can't leave your job and you can't run a startup. Yeah. It becomes hard to do this. That is true. Cool. थोड़ा बात करते हैं मतलब US versus India. So sorry, before we do that, so after TCS you went to Google. No, I've joined few startups. I started few startups. Yeah, you were talking about startups. Yeah. So I started few startups. I tried a lot of things with those startups. Then after that, I joined Hitachi as a software engineer. So after failed 3 startups, For that learning, and then you joined back to Hitachi because I found myself, because maybe kuch gaps are there, still I still need to learn a lot, and I have to fill those gaps. So I've joined Hitachi again as a full stack engineer. Then I've worked with them for 1.5 years. Then I joined Google.
So last year only I've joined Google. Now I'm working with Google. I'm still grooming myself. I'm still, looking for right time and right opportunity. How is the interview process of Google different than other companies? As we all already discussed, DSA. That is the main thing. That's the main thing. They have like 5 to 6 rounds. One is very general round to at least see if the candidate is, eligible for the your DSA problem or your technical interview or not. That's a very general interview. They'll just see if the candidate is at least eligible for the technical round. Then you'll have 2 to 3 technical round as per your performance. After that, like as per my experience, I have to give a system design problem also. So I had one system design. I had 2 system design interviews. Then I had 2 managerial interviews. So I almost gave 4 to 5 interviews before joining Google. So the DSA people, you just कि पढ़ लेते हैं कि बस पढ़ लिया, बट दे एक्चुअली आस्क कि भैया कहाँ पे क्यों और कैसे. यू हैव टू Why? अब Why? आपने स्टैक चूज किया, क्यों चूज किया? ये में से मतलब व्हेन आई वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट, तो उनका डबल पॉइंटर लगा रही है, सिंगल पॉइंटर क्यों लगाया? ऐसे क्यों किया? वैसा क्यों नहीं कर सकते? What's And the they reason? try to change your mind and वो आपके रीजनिंग समझते हैं कि what was the reasoning. देन यू हैव टू जस्टिफाई योर सोल्यूशन Yeah. कि आपने ये ही क्यों यूज कर. सी प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे तो, राइट? फर्स्ट टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम यू हैव 100 ऑप्शंस. Yeah. You have 100 approach to solve the single problem, but why you have chose that one approach instead of that remaining 99 approach? You have to justify your approach, and to justify it you should understand the reason behind that approach, why how that approach is working behind the scene. So you need to understand the approach thoroughly, कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है पीछे, कहाँ यूज करो, कब यूज करो. सी कोई भी सोल्यूशन खराब सोल्यूशन नहीं होता. I would say कोई भी सोल्यूशन गलत नहीं होता. इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इट मीन्स यू हैव अ सोल्यूशन फॉर इट. बट नाउ इट कम्स कि कितना परफॉर्मेंस वाइज ऑप्टिमाइज्ड है, हाउ गुड परफॉर्मेंस योर सोल्यूशन इज प्रोवाइडिंग. दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. बट कोई भी सोल्यूशन इज नॉट अ बैड सोल्यूशन. If you're solving a problem, it means it's a solution. Then you can optimize it, you can improve it. That's a different story. But apart from that, matlab they started with DSA. They gave me few DSA problems. And then manager rounds ये सब. Then as per my experience, 10 years of experience, they started asking system design problems. There are very famous system design problems. I gave different design problems although. But after that, they took 2 manager rounds. Then I got selected. Okay. It's not like that कि बाकी कंपनी ने आपको एक दिन इंटरव्यू लिया, दूसरे दिन इंटरव्यू लिया, थर्ड डे ऑफर लेटर. Yeah, yeah. They took Google almost package. month or 2. Yeah, yeah. That- What is the package right now? So I started with, as I mentioned, when I started my career as a BCA, after graduating BCA. So I started with 1.8 per year. Now I'm approx around 50 CTC. 50 is my overall CTC. It's for a year, and I still have that. I would say that I can see that growth, which I can still, After getting Google name, you can go to any company after this. Right? even inside Google, they have so many Yeah, opportunities. yeah. YouTube है, ये सब कुछ है. When I started with them, I thought कि मेरा पैकेज अच्छा है. When I joined them, then I realized, okay, it's an average. I can still grow inside Google. मेरे को लगता था कि नहीं, I got a good package when I joined Google. People earning 1 CR, 1.5. अरे बहुत आराम से. Bangalore में. That's the difference actually. Initially, I was working from North India. So North India में और South India में difference था. मेरे को starting से लगता था कि चलो maybe it's a difference of 5 to 10 lakh at max. Then for Google, I moved to Bangalore. Then I realized कि okay, North में I was last year maybe I was getting around 35 lakh per annum in North, and that was the maximum of North. Most of the companies, they will not Can't give get you, more than that, yeah. even will not able to pay you that same amount. तो वो उनके लिए there is a bucket कि आप उससे ऊपर you can't go. Then I've joined Google and I got around 50 LPA per year. I thought maybe okay, it's a very good amount. At least मेरे को मिला इतना जो मेरे को North में नहीं मिल रहा. Then I got opportunity in South. Then I went to South. I went to Bangalore. Then I realized okay, यहाँ तो अलग ही game है. यहाँ तो ये एवरेज है. Yeah, yeah, yeah.
This is an average when it comes to South India. But the problem is like like a lot of I met a friend yesterday. He works for Synopsys. He also got around 50. He is a very talented. वो हार्डवेयर इंजीनियर है, चिप डिजाइन करता है. उसको टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एनवीडिया के वो है गोल्स. बैंगलोर में आराम से इसका 1.5 हो जाएगा. बट बैंगलोर जाना नहीं है. That is only thing. अब वही एक डिफरेंस है कि फॉर मी आई कैन डू वर्क फ्रॉम होम. Yeah, you can do work from It's an hybrid opportunity or work from home. तो I still have that option. option. Yeah. कि मैं बैंगलोर में जॉब करके यहाँ से काम कर सकता हूँ और अगर मेरे को महीने 2 महीने में जाना भी हुआ, that's not a bad So the thing. salary is very good. Yeah, that's what we are talking about. Yes. Right? What is the work culture difference? Google ka versus other companies you worked. I would say my work-life balance is pretty sorted. They strictly work on those particular hours कि जो भी आपका working hours है, which is let's say 9 to 5. So they don't bother you after 5. You can clearly say okay, Before in previous company they can bother. yeah, they can Google का work culture काफी अच्छा. काफी better है apart from if you will consider any company. And खाना पीना भी मिलता ही है. खाना If तो you go there. और food is very good. मतलब आई वॉज नॉट मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि शायद खाना इतना अच्छा होगा. फूड इज फार बेटर देन योर अदर रेस्टोरेंट एंड ऑल एंड दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू फूड. तो खाना तो ऑब्वियसली अच्छा है बट वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल्सो वेरी सॉर्टेड. I think Google का ऐसा होता है कि they treat employee as a family. वो चाहते हैं जो employees में बाहर ही ना जाए. जैसे बार्बर शॉप हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, ठीक है, और चाइल्ड केयर सब कुछ अंदर ही है उनके. वहाँ यूएस में तो मैं बात करता हूँ. That is the thing. Have you ever thought about going to US or foreign countries for job and stuff? When I started my career for initial 2-3 years, मेरे को लगा था कि maybe I'll shift to either US, Canada or any other country apart from India. Then after starting my startups and I've realized कि यार बाहर जाके मैं अपनी एक जनरेशन पीछे मतलब यूजुअली व्हाट वी डू कि आपके जो पीछे वाली जनरेशन जो आपको दिया है यू विल टेक दैट इनपुट एज योर नेक्स्ट स्टेज बढ़ाओगे. लेट्स से माय फैमिली हैज लेट्स टेक वेरी रैंडम फिगर लेट्स से 1 करोड़. उन्होंने मेरे को 1 करोड़ दिया, देन आई विल ट्राई टू इंक्रीज इट एंड आई विल ट्राई टू मेक इट टिल 10 करोड़. मैं उसको कुछ तो करूंगा. बट मेरे को रियलाइज हुआ कि बाहर जाने के बाद या यूएस जाने के बाद मैं वो उनका 1 करोड़ तो छोड़ दूंगा. आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. अगर मैं उनका करोड़ यहाँ पे लेके इफ आई इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज आज के टाइम इंडिया पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है. जितने भी बाहर के लोग हैं वो बाहर से पैसा कमा के इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उनको भी पता है कि पैसा कमाना है तो इंडिया से ही कमा सकते हैं. तो उनको भी पता है कि बाहर जितने भी मैंने यूएस स्टार्टअप देखे हैं जो काम यूएस से कर रहे हैं, इंडियंस हैं बट इन्वेस्ट इंडिया में कर रहे हैं. अब मेरे को भी वो दिख गया 3-4 साल बाद कि अगर मैं बाहर गया तो एक तो मैं पहले जीरो से स्टार्ट करूंगा, मैं अपनी अगली जनरेशन के लिए काम करूंगा. और मेरे को शायद वो इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा ना लगे क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो बाहर रह रहे हैं सबके दिमाग में आज भी वो है कि वापस आना. कमा लिया पैसा बाहर बट वो पैसा लेके वापस आना इंडिया. बट कुछ लोग रुक जाते हैं बिकॉज दे आर मैरिड एंड दे हैव किड्स. हाँ, after the more you stay, once you have a family and all, it's difficult to come back. क्योंकि बच्चों का सब कुछ वहीं पे स्कूल सब कुछ चालू रहता है, लाइफस्टाइल सब वही है. एंड मैंने ये भी देखा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो दे आर यूज्ड टू दैट कल्चर. क्या होता है कि वहाँ का वेदर अच्छा है, ठीक है, पानी और खाना पीना अच्छा है. यहाँ पे उनको बीमारी लग जाती है. हम यहाँ पे यूज्ड टू है, हमें बीमारी आती है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना बढ़ चुका है. मेरे को 10 मच्छर काटते हैं रोज, उनको 1 मच्छर काटेगा बीमार हो जाएगा. तो ये सीमा, एक मच्छर नहीं दिखता. वो एक डिफरेंस है. तो मैंने जितने भी फ्रेंड्स से सुना है जिनके दे हैव किड्स नाउ बट उनको दिमाग में आज भी ये है कि अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो शायद मैं इंडिया जाता. बट अब बच्चे हो गए तो दे कांट इवन थिंक अबाउट इट कि अब मेरे बच्चे हैं, उनका लाइफस्टाइल यहाँ पे स्टार्ट हो गया है. माइंडसेट इज गुड बट लॉट ऑफ पीपल वांट्स लाइक आई वांट टू डिवाइड पीपल इन 3 कैटेगरीज. एक तो इनलाइट पीपल होते हैं, ठीक है, जो आईआईटीज वाले लेवल पे होते हैं. वो तो जहाँ जाए दे विल बी सक्सेसफुल. उन्होंने आईआईटी निकाला है तो उनका आईआईटी के अच्छे नाम ना बाहर भी बहुत है. तो एवरी गूगल जब भी रिक्रूटर कॉल्स यू राइट, इफ दे सी आईआईटी दे विल से भाई यार वो ट्रीट यू एट अ डिफरेंट लेवल. उसके आते हैं मिडिल वाले बंदे जो जिसमें मतलब मैं जैसे लो है, मतलब इतने बुरे भी नहीं कर रहे, इतने अच्छे भी नहीं कर रहे. फिर आते हैं जो लो टियर वाले होते हैं. तो लो टियर डेफिनेटली दे आर नॉट सक्सेसफुल हियर, दे वांट टू गो टू यूएस या कनाडा जो भी है. एंड ऐसे लोग बहुत है वहाँ पे जो ओवर ड्राइविंग ये सब में करते हैं, विच इज ऑल्सो फाइन. बट वहाँ पे पर आवर में उनको अच्छा सैलरी मिलती है.
मिड वाले जो होते हैं मेन सेगमेंट, वो दे आर कंफ्यूज्ड कि यहाँ जाए वहाँ जाए, वहाँ Problem- जाएंगे वापस आए, यहाँ पे वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे किस कंट्री जाए, ठीक है, ये यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग सेगमेंट है। ये एक्चुअली रहेगा क्योंकि इस सेगमेंट के पास अपॉर्चुनिटी भी है बाहर जाने की हाँ, सब कुछ और है। अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ रहने की, हाँ। ठीक है। तो दे आर कंफ्यूज बिकॉज दे हैव टू ऑप्शंस। हाँ, अब जहाँ पे ऑप्शंस होता है ऑलवेज यू विल हैव अ कंफ्यूजन कि भैया बाहर जाएंगे पैसा मिलेगा, बट मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मेरे को उसका आधा पैसा भी इंडिया में मिलता है तो मेरी लाइफ किंग साइज, आई लिव योर लाइफ एज यू नो किंग साइज। तो अगर मेरे को उसका आधा पैसा भी इफ आई एम एबल टू अर्न इन इंडिया, तो मेरा यहाँ पे खुद की गाड़ी है, खुद का घर है, ठीक है। अब मेरे को पैसा भी अच्छा मिल रहा है, अगर मेरे को पर मंथ अच्छा खासा पैसा अकाउंट में आ रहा है तो मेरे को फिर क्या चाहिए। मैं यहाँ पे मेड रख सकता हूँ, ड्राइवर रख सकता हूँ, आई कैन हायर एनी पर्सन वेरी इजली। बट इंडिया में और भी प्रॉब्लम्स है। तो वो देखो वो हर जगह रहती है, दैट कम्स योर माइंडसेट अगेन। प्रॉब्लम्स तो हर कंपनी में भी है, प्रॉब्लम्स हर कंट्री में भी है और हर कंपनी में भी है। हर कंट्री का अलग प्रॉब्लम, दैट इज ट्रू। यूएस में मैंने ये सुना है कि प्रॉब्लम्स ना घर के अंदर ज्यादा है, घर के बाहर कम है। घर के बाहर थिंग्स सॉर्टेड है, सड़कें क्लीन है, ठीक है, पानी खाना अच्छा है, उसके बाद कोई भी आपको ड्राइवर लाइसेंस बनवाना है, कुछ भी सरकारी काम कराना है, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, लाइन होती नहीं रहती। इंडिया में प्रॉब्लम घर के बाहर ज्यादा है, घर के अंदर कम है। अंदर कम है मतलब कि मेड्स हैं, सब कुछ है, बाहर मेड्स नहीं है, आपको सारा काम खुद करना, टॉयलेट भी खुद साफ करना पड़ता है, ठीक है। बाहर यहाँ ज्यादा है कि लाइनें, अब मेरे को डीएमवी लाइसेंस बनाना है, 1 महीने की वेटिंग है, चलो वो हो गया, उसका करप्शन हो गया यहाँ पे, ये सब चीजें, बट ठीक है वो सब सेकेंडरी है। आई थिंक द मेन पॉइंट यू मेंशन वाज माइंडसेट। लिविंग इन दीज chaotic, मतलब मेट्रो भी जाते हैं, इतना chaos होता है बाहर, इतना रहता है, बट उसमें भी अपना अलग मजा है। वो इसलिए इंडिया, और इंडिया स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे है। अगर आप भगवान से जुड़े हो, स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन योगा करते हो, तो इंडिया जैसा देश कोई नहीं। लोग रिटायरमेंट के बाद ना गोरे लोग भी यहीं पे सेटल होते हैं, ऋषिकेश में भर भर के है, ऋषिकेश हो गया। सो यू नो द आंसर, मतलब एवरी कंट्री हैज देयर फ्लॉज। आई एग्री, इंडिया की इम्पोर्टेंट बहुत है। तो अगर मैं इस फ्लॉस को ही देखता रहूंगा तो मैं कभी आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मेरे को तो मेरे को स्टार्टिंग से बहुत क्लियर है कि व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी और कंपनीज पे आई एम वेरी क्लियर कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन माय माइंडसेट कि मेरे को किस कंट्री में और किस कंपनी में रहना है और कैसे रहना है। ऐसा तो बाहर भी मैंने यूएस में बहुत सुना है कि बहुत इश्यूज हैं, मतलब एवरी कंट्री हैव देयर ओन, डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म होता है, मैंने बहुत ज्यादा होता है। तो बट इंडिया में अगर आप 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो और आपके पास खुद का घर गाड़ी है, यू आर अ किंग। आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं, आप आराम से घूमो। और इंडिया में देयर आर यू नो सो मेनी प्लेसेस टू एक्सप्लोर व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग, देयर सो मेनी प्लेसेस टू एक्सप्लोर। आई वेंट टू लद्दाख, लद्दाख इज लाइक सो मच थिंग्स टू यू नो एक्सप्लोर। यू हैव डेजर्ट इन लद्दाख which is Nubra Valley. इंडिया हैज एवरीथिंग। लद्दाख इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, उसमें डेजर्ट है, राजस्थान में डेजर्ट है, फिर बीचेस अच्छे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे माउंटेन्स हैं, सब चीज है, सब चीज है। we have like mini, you can say that Maldives, it's a mini Mauritius or Maldives, which is your Andaman and Nicobar. So क्या चीज नहीं है आपके पास, सब कुछ है एंड आप यहाँ पे आराम से कंफर्टेबली रह भी सकते हो। तो it totally depends on you know my mindset। मेरे को लगता है कि I'm very comfortable with my country, तो I should A lot of say people are actually, I'm seeing that trend, lot of middle version which was second one, they are coming back. एक तो यूएस में the market is not stable, अभी there's lot of layoff going on, visa issues, immigration issues, not a lot of people get green card, right? So people are coming back, वो रोते रहते हैं भाई वापस जा रहे हैं। मैं उनको समझाता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं जिनके ले ऑफ हुए हैं जो वापस जा रहे हैं, उनको बोलते भाई नहीं लगी जो इट्स फाइन, तुम्हारे पर लाइफ है, तुम्हारे 2 हाथ है, 2 पैर है, इंडिया जाके कमा लेना। हाँ। इंडिया में यार इंडिया जाना पड़ेगा यार, ऐसे बोलते हैं तो लोग कहाँ जा रहे हैं। so ऐसे सोमालिया और पाकिस्तान भेज रहे, कुछ ऐसा करते हैं। मतलब देखो अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हो इंडिया में तो ऑब्वियसली देयर सम बेनिफिट्स एंड देयर समथिंग व्हिच यू हैव टू सफर, कॉम्प्रोमाइज और क्या, पोल्यूशन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट अगर आपके पास जैसे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम, मेरे को कोई इशू नहीं है, आई कैन स्टिल यू नो मूव टू टीयर 2 cities. So in north, I'll preferably you know go to maybe Dehradun. I lived in Dehradun for 2 or 3 years. Then I realized okay, tier 1 city की lifestyle and tier 2 की lifestyle बहुत difference है, बहुत। अच्छा, मतलब they have देहरादून बेटर होगा far better. देहरादून मतलब मेरे को अगर देहरादून में रहना है, अगर मेरे को अपना लाइफस्टाइल देहरादून में रहना है तो मे बी वर्क फ्रॉम होम है, I'll still you know go to देहरादून। मेरा बहुत मन है देहरादून में रहने का, क्योंकि शिमला मिला मनाली के पास है, 1 घंटा ऋषिकेश के पास है, पहाड़ों के बड़े बड़े लैंड ही है। मतलब आधे घंटे में you have that ऋषिकेश या ऑप्शंस, आप ऋषिकेश जाओ और आधे घंटे में you can go to मसूरी। राइट,
आप बीच में हो, और आपके पास सारी फैसिलिटी है, सारी facility है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि पहाड़ों में रह रहे हो, एक्सेस नहीं है सब कुछ है। मतलब जहाँ मैं रह रहा था, थिंकिंग टू बाय लैंड ओवर देयर इन देयर। we actually bought 2 plots in Dehradun, but वही है कि it's very कितने के मिलते हैं अभी, क्या प्राइस चल रहा है? दिल्ली से तो मैं सस्ते ही होगा obviously still जितने भी देहरादून में प्रॉपर्टीज बिकी हैं सब दिल्ली वालों की है। एवरी वीकेंड वहाँ की रोड्स फुल रहती है। ये सबको पता है कि एवरीवन नीड्स अ लाइफ, एवरीवन नीड्स अ ब्रेक। वो 5 दिन दिल्ली में रहने के बाद सबको होता है 40 कि, 50 का मिल जाएगा वहाँ पे एक लैंड। और अप्रॉक्स गज, गज और कितना, 200 गज? मतलब उत्तराखंड के नहीं है तो देयर इज अ लिमिट फॉर एवरी पर्सन। यू कैन बाय 300 गज पर पर्सन विद, मतलब विद योर आधार कार्ड 300 गज। If you are not from Uttarakhand. यस, If you are एंड from Uttarakhand then unlimited होगा, वही के होगा। दैट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू, जितना पैसा उतना लगाओ। तो 300 का 50 का मिल जाएगा, नहीं 300 गज का। पर गज 50,000, अच्छा दैट्स द करंट रेट। सो तो 300 मतलब 300। 1.5 करोड़ के आसपास you'll get a land। अच्छा, इतना प्राइस है। घर तो मतलब 4-5 का बनेगा फिर तो। नहीं, आधे एक में मिल जाता। 300 गज इज नॉट दैट ह्यूज लैंड ना। यू कैन हैव योर मे बी अ डिसेंट हाउस। 300 गज में एक अच्छा घर बन जाता है। अभी भी लोग जैसे आईटी में जितने भी हैं, जो एक्सपीरियंस लोग भी हैं, मैं कहता हूँ डीएस उनको भी नहीं आता। तो स्टूडेंट्स फोकस कर रहे हैं डीएस पे, बट मेरे को लगता है कि डीएस से आनी चाहिए, बट डीएस का रीजन दैट वाई वो समझना चाहिए कि उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का यूसेज कहाँ है और क्यों है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्टअप का वर्क कल्चर अलग होता है। मतलब आई हैव वर्कड ऑन डिफरेंट स्टार्टअप्स की बात करते हैं। पहली बात तो स्टार्टअप जो आपने खोली है, स्टार्टअप्स खोलने का माइंडसेट क्या होता है, आप क्यों खोलते हैं? मतलब बेसिकली स्टार्टअप्स में अपना पैसा खुद का लगाना भी पड़ता है, इन्वेस्टर्स को मिल जाता है, बट डू यू रिकमेंड वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप? अगेन यू नीड अ माइंडसेट फॉर टू रन अ स्टार्टअप। इट टोटली डिपेंड्स। जिनकी जॉब की माइंडसेट है दे आर नॉट इवन एबल टू रन अ स्टार्टअप, बिकॉज स्टार्टअप में अप एंड डाउन्स दोनों आते हैं। पहली बात तो ये होती है, आप काम कर रहे हो स्टार्टअप में या आपकी स्टार्टअप खुद की है? वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है। अगर आप काम कर रहे हो तो यू विल अर्न अ लॉट, यू विल गेट अ गुड अमाउंट एज सैलरी। काम ज्यादा करना पड़ेगा, इट्स स्टार्टअप। ऑब्वियसली मल्टीपल हैट्स वेयर करनी पड़ेगी। इवेंचुअली यू आर अपग्रेडिंग योर स्किल्स देन। अगर आप लेट्स से, मैंने पर्सनली काम किया 14 घंटे काम किया स्टार्टअप में, तो आप 9 घंटे 8 घंटे का काम कर रहे हो, मैंने 14 घंटे का ऑन सिस्टम पे काम किया है। तो बट मैंने उन 14 घंटे में जो काम किया मैंने उससे सीखा ही बहुत है कंपेयर टू बड़ी कंपनीज। तो रिटायरमेंट लगता है मेरे को। तो उनको चाहिए कि एक बंदे को सब कुछ आए, एक बंदे को फ्रंट एंड भी आए, बैक एंड भी आए, क्लाउड भी आए। द कंप्लीट फुल स्टैक डेफिनेशन फॉर देम इज अ डिफरेंट, कि ही शुड नो एवरीथिंग, देन यू विल बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो स्टार्टअप में ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड अमाउंट एज सैलरी, यू हैव टू वर्क अ लॉट। क्योंकि मेजरली स्टार्टअप के जितने भी, जैसे मैंने पहले बताया कि यूएस में रहते हैं इंडियंस, दे वांट टू रन अ स्टार्टअप इन इंडिया, दे विल हायर पीपल फ्रॉम इंडिया। फिर वो करवाते हैं डबल शिफ्ट ऑलमोस्ट। You'll start at around 10 or let's say 11. You'll work till 8. Then they'll join around 9 p.m. They'll सेम बंदा जो ओनर है या फिर कुछ भी है, because he's living in US time, there is 9 a PM is a morning time for them. morning time for them. So still they'll join around 9 p.m. which your फिर काम time. पूछेंगे। फिर वो 3 घंटे आपको कॉल पे पुल करेंगे। अच्छा। They'll give you some extra task कि you have to do this, you have to complete this. So that 9-hour job will extend to 12 to 14 hours. Which A is startup- bad for employee, good for the owner, but लोग काम करने के लिए तैयार हैं because उनको पैसा चाहिए। उनको पैसा चाहिए, उनको स्किल भी चाहिए, तो they'll work for 1 or 2 years at max. They'll move back to again MNC's company or service based company, because वहाँ पे इतना कुछ नहीं है। And again that completely depends on project to project. अगर कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ, अगर आप कंपनी में भी हो तो, बट दैट प्रोजेक्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, देन यू हैव टू स्पेंड इट। After working for food, let's talk about health, क्योंकि हमारा टॉपिक माइंडफुलनेस पे है। तो हेल्थ इज आल्सो अफेक्टेड, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। वर्किंग 14 आवर्स, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, उसका फिजिकल भी डिप्रेशन, तूंदे बढ़ती रहती है, कचरा खाते रहते हैं। तो वो चल रहा है सीन आजकल यहाँ पे। ये एक्चुअली देखो, मेरे अकॉर्डिंग शायद हर जगह ही चलता है और ये चलता रहेगा, बट दैट अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। फॉर मी, मतलब व्हाट आई डू इज, as I mentioned, like 14 hours have spent, but that was not more than 6 months. Then you will left.
then I usually used to leave that startup and join a different and start a different product or different project. So after spending 6 months on that project, you realize, okay, you're spending a lot of effort and you have gained enough. Then it's the right time to leave that project and move on to the next project. But if you're stuck with that project for 5 years, it means bad shape. आपने पैसा तो कमाया, but किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? I used to work for a startup. मैंने सीखा बहुत, but हेल्थ में डिफिकल्ट। वे दिन रात काम कराते थे, वीकेंड में बुलाते थे, स्टारबक्स में जाता था उनसे मिलने, हम वाइट बोर्डिंग करते थे। आई वाज अ प्रोडक्ट मैनेजर, तो सारा यूजर जर्नी, क्या क्लिक होगा, क्या उससे कॉल जाएगा, ये जाएगा, हमें डिसाइड करना। इंजीनियर दैट डॉक्यूमेंटेशन, बट इट वाज वेरी हेक्टिक, बट आई लर्नड अ लॉट, एज यू मेंशन। That is a life learning lessons. So again, working more than a year, as you mentioned, like 6 months or a year, then maybe after a year, maybe you have learned a lot. Then it's the right time to move out from that project, Yeah. either from the company or from the project. Because if you'll spend more than a year, it means you're losing your health. Is age में 30, working for a year, spending a lot of time for that project for a year, in exchange of your knowledge or skills, upgrading your skills, it's fine. But after a year, if you're still project for 4-5 years, it means you have given too much, Importance of one project. That is. which is bad. People upgrade. I think for bigger or smaller, whatever, for 5, 6, 10 years, वो रिटायरमेंट वाली जॉब, सरकारी नौकरी बना लेते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। कह रहे दोबारा लीड कोर्स पढ़ना पड़ेगा, दोबारा हमें इंटरव्यू देने पड़ेगे। मैं तो क्या हुआ, अपग्रेड ही कर रहा है तो अपने स्किल, बट वो लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, बट आई डोंट लाइक दैट। So again, to person to person. See, my goal is different. My goal is I have to earn a lot. I have to earn something, and I have to invest that amount to something for my next generation. That's not. मतलब मैंने लोगों को देखा है जो एक जॉब पे they have spent 10 years, which is a whole whole generation or 1 decade you have spent on that company. That company has, I'm not right, but it depends upon them. if they don't have, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे. Their life, their choice. If they want to spend 20 years in a company, that's totally fine. Financials की बात, you're earning 50 lakhs in यहाँ पे, और Google में, for example, if you are like a fresh grad in Google, I will say they will earn around $350,000, right? तो $350,000 आपके हाथ में $15,000 आएगा महीने का, ठीक है? $15,000 is equivalent to around 12-13 लाख रुपए per month. Salary is equivalent to around 4-5 लाख रुपए, ठीक है? Expect a target 3 to 4. ठीक है, उधर आपके पास $15,000 3 लाख रुपए आ रहा है पर मंथ। So let's say पर मंथ करते हैं एप्पल्स टू एप्पल्स, कितनी सेविंग हो जाती है? So let's say, as you mentioned, 12 lakh per month US में and 4 lakh per month in India. So that's the difference. It's a 3 times than the US. But in US, you have started from scratch. Don't have your house, you don't have your car. आप रेंट पे रह रहे हो, Rent. गाड़ी पे है, चलो गाड़ी है, EMI भी चल रही है। चलो गाड़ी भी EMI चले, but that you have to invest a lot in cars, insurance. It's very expensive. Maintenance, your medical insurance are also very I will say, expensive. मतलब I live in US, सैलरी से फ्री हो जाती है, तो बेसिकली माय हाउस रेंट इज एक्सपेंसिव, $3,000 आई पे, प्लस मेरा गाड़ी का EMI, प्लस खाना पीना, ठीक है, इज वेरी एक्सपेंसिव हो गया है। घूमना फिरना वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स ज़्यादा है, तो आधी सैलरी चलेगी। 15 हज़ार में से, मतलब इन टॉकिंग ऑफ रुपीज 12 लाख रुपए, 6 लाख रुपए मेरे वहाँ से चलेगा। 6 लाख रुपए मेरी सेविंग होती 3 lakh saving and away from your family. है। Okay, you're earning 6 lakh, and here I'm earning 4 lakh per month. But 4 lakh, I don't have to invest on house. I don't have to invest on car. Insurance is very cheap. If I'll talk about medical and your car insurance, every insurance तो are very cheap. 90% 80% आपका And that 80% I can invest somewhere in India only. Stock it or property. बिगेस्ट फैमिली यहाँ पास में, फैमिली क्योंकि एज लिमिटेड है सबकी। So if I'll compare 4 lakh after reducing your all those expenses, so that cost of 2 lakh is staying away from your family. It's nothing. True, man. We talked a lot about life, about working in tech companies, startup, big companies and stuff. ये never ending conversation चलती रहेगी. So anything else you want to talk about as a closing thought to the audience? Any advice you will give in terms of working in tech companies, startup, big companies, mental health, physical, anything you want to talk about? So as per the name, like mindfulness, so it's just like team with any domain. I'm not talking about even only on IT, even marketing or any business also. It completely depends on your mindset.
आप कितना ब्रॉड सोच पा रहे हो डजेंट मैटर, यूर ऑन विच कंपनी, यूर वर्किंग विद विच, और यूर रनिंग योर ओन कंपनी और स्टार्टअप, doesn't matter how much Right. you're earning 10,000 or 10 lakh per month, that also doesn't matter. That completely depends on your mind, your peace कभी पैसे से नहीं आता. It's a very वो जो आपको लगे कि इसमें पीस है वो पीस है, राइट? इट्स नॉट लाइक mindset. राइट माइंड मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं खुश हूँ, तो for me if I'm earning 10,000 while sitting here and even इज बेटर देन olives, it depends on your mindset. Mindset like with every stuff, even with the country or company, doesn't matter, you're running your own startup. अगर आप तो चाहे 10,000 भी कमा रहे हो, कितने लोग हैं जो शायद 10,000 में भी खुश हैं और कितने लोग हैं जो 10 लाख में भी खुश नहीं है. So again, it completely depends on your वही देख mindset. लो ना, जैसे मम्मी पापा ही बोलते हैं गरीब लोगों को देख लो, घर बनाते हैं, वो खुश है 10-15 हज़ार रुपए कमाते हैं महीने के, और हम जितने लाख रुपए कमाते हैं हम फिर दुखी हैं क्योंकि हम कंपेयर करते हैं अपने को, कंपैरिजन में हम मरते मैंने कितने लोग देखे हैं जो यूपी से आते हैं या फिर बिहार से आते हैं, हैं. दे वर्क फॉर 2 months, पैसे कमाते हैं चले जाते हैं. 2 महीने कमाते हैं, 4 महीने एंजॉय करते हैं, फिर 2 महीने आते हैं कमाते हैं. सो वो आज में जीते हैं कि मेरे को आज कमाना है और आज लगाना है. उनका वो इतना माइंडसेट ही नहीं है कि वो कल पे सोचें, क्योंकि उनके पास उतना टाइम ही नहीं है, और वो खुश भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, बट दे आर स्टिल हैप्पी, फिट एंड हैप्पी. तो अगेन मैंने दिल्ली में कितने लोग देखे हैं जो खुशी ढूंढते तो हैं बट कभी ले नहीं पाते. आप भागोगे, मतलब बोलते हैं कि ट्रेन छूटी हुई ट्रेन के पीछे भागने का कोई सेंस नहीं है. वेट फॉर नेक्स्ट वन. तो खुशी आपको ढूंढनी नहीं है, आपको रियलाइज करनी है कि हाँ मैं खुश हूँ. Cool man, it's a good thought. खुशी जो है आपके अंदर ही है, आपको अंदर ही ढूंढनी है, बाहर कहीं नहीं है. ये सदगुरु को मैं फॉलो करता हूँ. Okay. Nice talking to you. We will have another session with you. It's a never-ending session. Yeah. So we wish you all the best in your career life and personal life. Thank you. And it was nice talking to you. Thank you so Thank much. you. Thank you.